اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے بیت المقدس کے حالات، غزہ کے حالات کو لے کر۔ جی ہاں، گزشتہ کل بیت المقدس میں فدائی حملہ ہوا جس میں 3 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے، 12 زخمی ہوئے ہیں۔ حملے میں غزہ کے مسلمانوں کے قتل عام کا فتویٰ دینے والا ربی بھی انجام کو پہنچ گیا، الحمدللہ۔ جی ہاں، یہودیوں کا وہ آقا اور وہ عالم جو ان کا پیر مانا جاتا تھا، اور اسی آتنکوادی نے غزہ کے مسلمانوں کے قتل عام کا فتویٰ دیا تھا۔ مجاہدین کو اللہ جزائے خیر دے، مجاہدین نے اس ربی کو بھی ٹھکانے لگا دیا، جہنم میں پہنچا دیا۔ حماس کے فدائی حملے کے بعد اسرائیلی اہلکاروں کی لاشیں اٹھاتی ہوئی تصویر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ معرکہ طوفان اقصیٰ کے 55ویں دن حماس نے اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی اور غزہ پٹی اور ویسٹ بینک میں خواتین اور بچوں کے قتل کے خلاف اسرائیل کے جرائم کا جواب دیتے ہوئے بیت المقدس میں فضائی حملہ کیا، جس میں حماس کے 2 فدائی شہید ہوئے۔ جمعرات کو اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں مطلوب افراد میں سے 23 لوگوں کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا، جن میں سے 10 کا تعلق حماس تحریک سے، جبکہ الجزیرہ کے نمائندے نے بتایا کہ قابض فوج نے دونوں شہیدوں کے خاندان سے 9 لوگوں کو گرفتار کیا۔ ادھر اسرائیل نے جنگ بندی ختم ہونے کے بعد غزہ میں حماس کو ختم کرنے کے لیے پھر سے غزہ پر حملہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، جس کے جواب میں حماس نے کہا کہ ہم بھرپور جواب دیں گے انشاءاللہ۔ فدائی حملے پر حماس کی طرف سے جاری بیان کے مطابق شہید عز الدین القسام بریگیڈز یروشلم آپریشن کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے، جو صبح مقبوضہ بیت المقدس کے شمال مغربی دروازے پر کیا گیا، جس نتیجے میں 3 صہیونیوں کو، 3 آتنکوادیوں کو ہلاک کیا گیا اور 12 کو زخمی کیا گیا۔ اور ہم نے اپنے عوام اور قوم کے سامنے اس بہادر آپریشن کے شہید 2 بھائیوں مجاہد مراد محمد اور مجاہد ابراہیم محمد کی شہادت کا اعلان ہم کرتے ہیں۔ یہ آپریشن غزہ کی پٹی اور مقبوضہ مغربی کنارے میں بچوں اور خواتین کو قتل کرنے اور القدس کی بے حرمتی کے قبضے کے جرائم کا بھرپور جواب ہے۔
नाज़रीन, गुज़िश्ता कल तेलंगाना में वोटिंग हो गई और ख़बरें आ रही है कि तेलंगाना में तकरीबन 64% पोलिंग हुई है। बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस में ज़बरदस्त यूँ समझिए कि टकराव था और उसी टकराव के साथ साथ, सियासी टकराव के साथ साथ गुज़िश्ता कल पोलिंग के वक्त में, वोटिंग के वक्त में बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के कारकुनान में झड़पें भी हुई है। तेलंगाना की 119 असम्बली सीटों पर 5 बजे वोटिंग खत्म हुई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शाम 5 बजे तक यहाँ सिर्फ 64% पोलिंग हुई है। आइए, आप जानते हैं कि ऐसे ही इलेक्शन मध्य प्रदेश में भी था और राजस्थान में भी था। तो इस वक्त 2 अजीब खबरें आ रही है। हालांकि ये एग्जिट पोल है, अभी फाइनल नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि बीजेपी के हाथ से मध्य प्रदेश फिसल गया या मध्य प्रदेश बीजेपी के हाथ से निकल गया। वहीं पर खबरें ये भी आ रही कि राजस्थान कांग्रेस के हाथ से निकल गया। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की फतह का इम्कान नजर आ रहा है। मिजोरम में अभी मामला क्लियर नहीं हो पा रहा है। खैर, 5 रियासतों के एग्जिट पोल सामने आए हैं। 5 रियासतों यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, यहाँ वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। रिजल्ट का ऐलान 3 दिसंबर को किया जाएगा, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल जाहिर हो चुके हैं, जिसके मुताबिक 5 रियासतों में से 2 में बीजेपी और 2 में कांग्रेस की हुकूमत बनती नजर आ रही है। एक में इलाकाई पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। आइए, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह, इनके कदम जहाँ पड़ते हैं वहाँ यूँ समझिए कि माहौल ख़राबी होता है। लोग ऐसा कह रहे हैं और अपोजिशन तृणमूल कांग्रेस भी ऐसा कह रही है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि अमित शाह के बंगाल के दौरे के 1 दिन के बाद ही कई मकामात पर CBI की तलाशी मुहिम शुरू हो गई। अमित शाह की रैली की और तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि ये अमित शाह की रैली की नाकामी को छुपाने के लिए CBI का एक बार फिर घटिया तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि खबरें और जनता उधर लग जाए। और अमित शाह की रैली पूरी तरीके से नाकाम रही। अमित शाह को लोगों ने देखना भी पसंद नहीं किया, लोगों ने फ्री में आना भी, पैसे लेकर आना भी उनकी रैली में पसंद नहीं किया। अमित शाह की रैली पूरी तरीके से नाकाम हुई और तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि इसी रैली की नाकामी को छुपाने के लिए CBI का नापाक और घटिया तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और तृणमूल कांग्रेस या उससे करीबी जितने लीडर हैं, उनके उन करीबी लीडरों के करीब CBI के छापेमारी की जा रही है। आइए दिन बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि 27-28 पार्टियों का, अपोजिशन पार्टियों का मुल्क में एक महागठबंधन बना है, जिसका नाम रखा गया इंडिया इत्तेहाद। और अब खबरें आ रही है कि इंडिया इत्तेहाद अगर 2024 और 2023 के असेंबली और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अगर इंडिया इत्तेहाद गालिब आता है तो कौन बनेगा वजीर आजम, कौन संभालेगा PM की कुर्सी? तो खबरें आ रही है कि नीतीश या राहुल ये वजीर आजम नहीं हो सकते, बल्कि खड़गे हो सकते हैं इंडिया इत्तेहाद के वजीर आजम का चेहरा। लोकसभा इलेक्शन 2024 से पहले इंडिया इत्तेहाद में वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के लिए तनाज़ात और पेचीदगियों का सिलसिला जारी है, लेकिन थोड़ा सा साफ तौर पर यह नज़र आ रहा है कि नीतीश या राहुल वजीर आजम नहीं होंगे, बल्कि खड़गे हो सकते हैं वजीर आजम का चेहरा। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि लाउड स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लाउड स्पीकरों के खिलाफ मस्जिदों के मीनारों पर जो अल्लाह अकबर की सदाएं आती है, उन सदाओं से योगी आदित्यनाथ को काफ़ी तकलीफ हो रही है। अंदर से BP, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर लेवल कम हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन न BP बढ़ रहा है न शुगर लेवल कम हो रहा है। इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो नीच और घटिया हरकत करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि मुसलमानों की मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर या किसी भी तरीके से मुसलमानों पर अटैक होगा तो भगवा टोला खुश होगा। यही योगी आदित्यनाथ का मकसद है। खैर, उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अभी खबरें आ रही है कि संभल में अब तक 40 मजहबी मकामात से लाउड स्पीकर हटा लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि जिन मजहबी मकामात पर बगैर इजाज़त लाउड स्पीकर लगाए गए हैं उन्हें हटाया जाएगा। इसके अलावा तमाम मजहबी मकामात पर
नस्ब लाउड स्पीकर का हजम भी ज़वाबित के मुताबिक कम किया जाएगा। इससे सौती आलूदगी में कमी आएगी। पुलिस का कहना है कि तमाम मजहबी मकामात के मुंतज़मीन से बातचीत के बाद उनके ताउन से लाउड स्पीकर हटाने का काम जारी रहेगा। लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदों के 3 मिनट की अजान के लाउड स्पीकर मत हटाओ। अगर यूपी और उत्तर प्रदेश की जनता की इतनी फिक्र है तो रास्ते पर जो जानवर बैठे रहते हैं उन जानवरों को हटा दो। इन जानवरों ने हजारों इंसानों की जानें ले ली है। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए दिन बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि आम तौर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये इज्तिमात का सिलसिला शुरू रहता है। अभी पूरे महाराष्ट्र भर में तबलीगी इज्तिमात हुए हैं, तबलीगी जमात के दावत व तबलीग के इज्तिमात हुए हैं। और अब खबरें आ रही है मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अय्यूब ने बताया कि मुंबई के आज़ाद मैदान को भी पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। वहाँ पर सालाना सुन्नी इज्तिमा होने जा रहा है। सुन्नी दावती इस्लामी के 3 रोज़ा इज्तिमा के पहले दिन अपने घर के ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिमा में शिरकत के लिए भेजें, ऐसा अमीर सुन्नी दावती इस्लामी ने अपील की है। पहले दिन का आगाज़ आज बाद नमाज जुमा आज़ाद मैदान में हज़रत सैयद मुईन मियाँ साहब के बाबरकत कलमात और दुआओं से होगा। गुज़िश्ता कई हफ्तों से 6 रोज़ा आलमी सुन्नी इज्तिमा की सारी तैयारियां जो मुख्तलिफ सतहों पर की जा रही थी वो मुकम्मल हो गई हैं और बाहर से आने वाले उलमाए किराम और मशाइख़ इज़ाम भी इज्तिमा में शिरकत के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से मुंबई तशरीफ़ ला चुके हैं। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मंशियात मामले में, नशा आवर पदार्थ के मामले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 3 करोड़ रुपए की जायदाद और सोना वगैरह जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने 3 करोड़ रुपए के असासे जब्त किए हैं जो मुबैना तौर पर 4 आदमियों के जरिए जमा किए गए थे, जो तकरीबन 3 महीने पहले मंशियात के एक मामले में गिरफ्तार किए गए 12 अफराद में शामिल थे। एक एहलकार ने बताया कि इस जो जायदाद जब्त की गई उसमें एक फार्म हाउस मालेगांव में, 50 तोला सोना और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में ज़मीन के प्लॉट मंशियात के गैर कानूनी फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम से ख़रीदे गए थे। क्राइम ब्रांच ने मुलजिम साहिल रमज़ान अली, कायनात साहिल खान, सरफराज साबिर अली, ऐसे ही प्रियंका अशोक, इनकी जायदादें भी जब्त कर ली है। एहलकार ने कहा कि भूरा जो है, उसमें भूरा जो सरफराज साबिर अली जिसका उर्फ है भूरा और एक मोहम्मद अजमल मुबैना तौर पर मंशियात के ये मास्टरमाइंड है। एहलकार ने मजीद कहा कि ये दोनों कई सालों से स्मगलरों के नेटवर्क के जरिए मुंबई भर में मंशियात सप्लाई कर रहे थे। मजीद तफ्तीश जारी है। आइए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, कि खालिस्तानी दहशतगर्द के कत्ल में हिंदुस्तानी एहलकार पर मुकदमा तशवीशनाक है। हिंदुस्तान का ये बयान आया है। हिंदुस्तान तहकीकाती रिपोर्ट के बाद अमरीका के इल्ज़ामात पर कार्रवाई करेगा। वजारत ख़ारिजा का बड़ा बयान सामने आया है। यानी वजारत ख़ारिजा ने कहा है कि खालिस्तानी दहशतगर्द के कत्ल में हिंदुस्तानी एहलकार पर मुकदमा करना ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये तशवीशनाक बात है। वहीं पर वजारत ख़ारिजा से ये भी बयान आया है कि बहुत जल्द हिंदुस्तान तहकीकात की रिपोर्ट के बाद अमरीका के इल्ज़ामात पर कार्रवाई करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के UAE के दौरे के हवाले से खुसूसी ब्रीफिंग में अमरीका के हवाले से सवालों का जवाब देते हुए वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका के साथ 2 तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत के दौरान अमरीकी फ़रीक ने मुनज़्ज़म मुजरिमों, बंदूक बरदारों, दहशतगर्दों और दीगर इंतहा पसंदों के दरमियान गठजोड़ से मुताल्लिक़ कुछ अनपिट शेयर किए हैं।
کچھ اسکرپٹ شیئر کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کے معاملات کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں اور کیس کے تمام متعلقہ پہلوؤں کو دیکھنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ آئیے آخری بڑی خبر اس وقت امراوتی کے ردپور سے ہمارے رپورٹر عبدالرازق نے بھیجی ہے کہ امراوتی ضلع میں ایک بہترین ہندو مسلم ایکتا کی مثال مسلمانوں نے قائم کی۔ ایک طرف ملک میں بی جے پی، آر ایس ایس اور بھگوا ٹولہ نفرتوں کا ماحول بنا رہا ہے، نفرتوں کے بیج بو رہا ہے، لیکن وہیں پر امراوتی ضلع کے ردپور سے ایک بڑی پیاری خبر آ رہی ہے کہ جہاں پر ایک بے سہارا برہمن مہیلا کا مسلم بھائیوں دوارا انتم سنسکار پورے ہندو رسم و رواج کے ساتھ کیا گیا۔ مسلم سماج کے لوگوں نے پورے ہندو ریت و رواج سے انتم سنسکار کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کورونا کے وقت میں بھی جب لوگ اپنے ماں باپ کی لاشوں کو ہاتھ نہیں لگا رہے تھے، اس وقت بھی ہزاروں لاشوں کو شمشان پہنچا کر ان کا انتم سنسکار کرنے کا کام مسلم جوانوں نے اور مسلم سماج کے کئی سنستھانوں نے کیا تھا۔ خیر، ردپور میں یہ جو کام ہوا ہے راشٹریہ ایکتا کی ایک بہت بڑی مثال ہے اور نفرتی چنٹوؤں، بھگوا چنٹوؤں کے منہ پر ایک تماشا ہے جو ملک میں ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ آج سے 2 دن پہلے 41 مزدوروں کی اتراکھنڈ میں ٹنل سے اپنی جان پر کھیل کر 41 مزدوروں کی جان بچانے کا کام مسلمان انجینئر اور مسلمان مزدوروں نے کیا ہے۔ اس پر بھی وہ تمام لوگ بوکھلا گئے ہیں جو رات دن ہندو مسلم کرتے رہتے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں کے جو آتنکوادی چینل جو ہمیشہ ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلانے کا بیج بوتے ہیں، وہ بھی بوکھلا گئے ہیں، تلملا اٹھے ہیں کہ مسلمان بڑے اچھے کام کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔